Continuation of the lesson, page number 34, third paragraph. Continuation of the lesson, rat trap, page 34, paragraph 3. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. सीधे रास्ते में जाएगा तो the problem will be there. So he decided to enter the woods. जंगल में घुसने का डिसाइड किया. During the first hour, this caused him no difficulty. After entering the forest, he was walking without any difficulty. Later in the day, it became worse, and after that, it became worse and worse, for it was a big and confusing forest which he had got into. The forest was a confusing one, so it was very difficult. Why was it difficult to go through the forest, or why was the forest a confusing one? Maybe the question like this will come. Later in the day it became worse, for it was big and confusing forest which he had got into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. शुरू में रास्ता सही नज़र आया, लेकिन बाद में रास्ता ट्विस्टेड हो गया. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. जैसे समय बीता गया तो उनको पता पड़ गया कि एक ही रास्ते से चक्कर काट रहे. All at once recalled his thoughts about the world and the rat trap. तुरंत उन्हें उस संसार की याद आ गई जो पूरा एक रैट ट्रैप है. Now his own turn had come. अब खुद का मौका आ गया. आज तक दूसरों को फंसा रहे थे आप, तो खुद फंसने वाला इस जंगल में. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. वो अपने आप को चारा मानकर किसी ने उसको इस्तेमाल किया, वो जल्दी पकड़े जाने वाला है. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. जैसे उसने सोचा था पूरा जंगल, उसका जो तना, ट्रंक, डाली मोटा वाला, and then branches, और पतला वाला तना means branches. It's thickets means पेड़, and fallen logs, गिरा हुआ लकड़ी, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ये चारों तरफ घेर लिया उसको. कहीं गिरा हुआ लकड़ी, कहीं ऐसा लकड़ी, कहीं ब्रांच, कभी तना, कभी कुछ है, कुछ पेड़, ये सब उसको घेर लिया. He thought that he will be here, and he was in such a place that he cannot escape from there. It was late in December late, last week मान लो. Darkness was already descending over in the forest. शाम होते ही अंधेरा भर गए. This increased the danger and increased also his gloom and despair. निराश हो गया. जो पिछले रात को कम से कम किसी के घर पे सोने का मौका मिला, what will be today? Finally he saw no way out, and he sank down on the ground, tried it to death, thinking that his last moment had come. उसने सोचा मेरा आखिरी टाइम आ गया,
अब आगे बढ़ ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द डार्कनेस. द फर्स्ट थिंग इट इज़ ए फॉरेस्ट एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज़ टोटली डार्कनेस. सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, नीचे लेट गया ये मानकर. बट ही हैड ए साउंड, लेकिन उसने एक आवाज़ सुनी. ये हार्ड रेगुलर थम्बिंग, बिल्कुल बीटिंग की आवाज़ सुनाई दे रही. देयर वॉज नो डाउट as to what that was. उसमें कोई शक नहीं था. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. उनको पता पड़ गया किसी आयरन मिल में आयरन के ऊपर मारने का, हथौड़ा मारने की आवाज़ है. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई. इसका मतलब आसपास में कोई लोग है ही. ही सराउंडेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. पूरा ताकत इकट्ठा किए, गोट अप, खड़े हो गए. एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. जहाँ साउंड आया, साउंड सुनाई दिया, उधर की ओर बढ़ा. The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with a smelter, rolling mill and forge. वो जो पुराना समय का था वो तो वैसे बंद हो गया. The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant. अभी जो बंद हो गए वो तो पहले एक ऐसा बड़ा प्लान था विथ स्मेल्टर. ना स्मेल्टर यानी स्मेल्ट करने वाला, पिघलाने वाला जो एरिया लोहे को. रोलिंग मिल एंड फोर्ज, फोर्ज यानी फर्नस, चूल्हा, भट्टी. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली डॉटेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनाल. समर के महीने में बार्जस बड़ा बोट, स्काउस छोटा बोट कैनाल से निकलते थे. विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक. वो एक लेक में पहुँचते थे वहाँ से. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स. सर्दी का मौसम में वहाँ पूरा रास्ता काले पड़ जाता था. वो ऐसे ऐसे क्रेट्स में चारकोल रहेगा, चारकोल है जो कोयला. एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल्स वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स. टोकरी से ये कोयला भर के ले जाते थे, उसका पाउडर गिरा करता था और उसका निशान दिखाई दिया. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. वहाँ पर मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर अप्रेंटिस बैठ के काम कर रहे थे. which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. anvil यानी निहाई, जिसके ऊपर रख के जो मारते, शेप बनाते. तो इस तरह से वो तैयार होकर निकलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उसको कूटने के लिए. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. बीच बीच में वो उठ के एक बड़ा आयरन रोड से उसको हिलाते थे. रिटर्निंग इन फ्यू मिनट्स, उसके बाद वापस आ जाता है. ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, पसीना बह जाता है और पसीना पूरा भर जाता है, बहने लग जाते हैं. दो as with the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. लकड़ी का जूता और लंबा सा कपड़ा पहन रखा था. ये सिस्टम है, भट्टी में काम करने वाले ऐसे ही करते हैं. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper
sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with the perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time there were many sounds be heard in the forge. Forge में और भी आवाज़ आ रहे. The big bellows groaned and the burning coal cracked. जलता हुआ कोयला टूटने की आवाज़. And big bellow means apparatus for blowing air into fire. जो फूक मार के आग का भट्टी को मतलब तेज कर देते हो और उस टाइम जो चिंगारियाँ निकलती है उसकी आवाज़. The fire by shoveled charcoal into the maw of the furnace. Maw means mouth. और तगारी के अंदर भर भर के उसके अंदर कोयला डाल देते. उसी टाइम आने वाले उसके डालने की आवाज़, उसमें आग लगते समय टूटने की आवाज़. विथ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर्स, किसी के साउंड भी सुनाई देते. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर बारिश हो रही है उसकी आवाज़ भी आ रही. ये वाटरफॉल बारिश है या नहीं. एंड ये शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof. और छत पे बारिश की पानी गिरने की आवाज़ भी साथ साथ सुनाई देते. Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter, for he might be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं था कि इसके लिए तो बस उसने कोई ऐसा जगह दिखाई दिया तो वहाँ गर्माहट भी है, आग जलते रहते, चूल्हा रहते, भट्टी जलते रहता है, तो वहाँ जाए तो कोई फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन वहाँ पहुँच गया तो बिल्कुल दुबई नज़र आ रहे थे. सूटी यानी कवर्ड विथ स्मोक. एंड टू कम टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर. उसने सोचा मैं वहाँ जाऊँ तो मैं थोड़ा आराम भी कर सकता हूँ और साथ साथ मेरा शरीर भी गर्म कर सकता. द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर यानी घुसपैठ. विदाउट परमिशन एंटर होने वाले को कहता है इंट्रूडर. मास्टर ब्लैक स्मिथ उसको देखा लेकिन उसने ज़्यादा परवाह तो किया ही नहीं. उनको ऐसा लगा कि बस वो कोई आए. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड. उसको पता है क्योंकि कई बार लोग ऐसा आते हैं उनके पास. विथ ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी गंदा, रैग्ड कपड़ा खराब, एंड विथ ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. कुछ रैट ट्रैप उसके हाथ में है, वो कंधे पर लटका रखा है. इस तरह के एक आदमी उसके सामने आया. उसका ज़्यादा ध्यान क्या दे, बस इतना तो हो गया. नॉर्मल कैसे उनके लिए, क्योंकि लोग ऐसे आते ही आते. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent. Consent an agreement means consent, permission, without honoring him with a single word. तो पूछा रात बिताऊँ क्या, मैं यहाँ लेट जाऊँ क्या. मास्टर ब्लैकस्मिथ बोला ठीक है ले रह जा. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग. आवारा कुछ बोला ही नहीं. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. वो कुछ नहीं बोला, बातें करने थोड़ी आया. उनको तो वहाँ रात बिताना था, आराम से सोना था, इसलिए आया. अगर ज़्यादा बोला है तो the talk will turn into something. Already we know that he had
taken the money from the old man and that is still with him. So he is not willing to talk to anybody else. ये भी एक कारण है. And he thought he will be caught if he engages into talking. अगर वो बातें में लग जाएं तो हो सकता है वो पकड़ा जाए. ये भी उसका डर था. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उस ज़माने में एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के कंट्रोल में थे राम्सजो आयरन मिल. वो ये चाहता है कि यहाँ से अच्छा लोहा बना कर शिप आउट करें, सेंड करें, भेजें. He watched both night and day to see what the work was done as well as possible. वो हर रात यहाँ आके चेक करके जाते थे कि काम सही सलामत हो रहे नहीं हो रहे. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. इसी वक्त वो आदमी भी वहाँ पहुँच गया कि उनका नाइट इंस्पेक्शन का टाइम था, तो वो वहाँ पर आ गए. What happened after that we will see in the next class.